वंदे मातरम नमस्कार। माँ और माटी आम समस्त छाती भितर गोटे उच्चाटित स्पंदित उच्चारण से माटी केतेबेले आम आवेग और संवेगर गोटे स्वाक्षरित सत्यपाठ से माटीर दायरे मुक्तिर महार्ग मार्गरे अग्रसर होई जो जातिर यशस्वी संतान माने स्वाधीनता संग्रामी माने जो विजयर गीतिका गाइथिले ता हेउछि वंदे मातरम। ए वंदे मातरम स्लोगान केतेबेले ए जातिर स्वाधीनता संग्राम को गरियान करिछि तो पुणी केतेबेले यार सांगतिक नांदनिक तृप्ति पलकरे आम समस्त आत्मा होइछि विभोर। तबे कौन रही ए वंदे मातरम गीतर संरचनार पृष्ठभूमि आ किभଳି भाबरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम को यह बल देइथिला गतिशील करिथिला ए संपूर्ण विषय आज आलोचना करिबा आमर स्वतंत्र उपस्थापना वंदे मातरम कार्यक्रम भितरे। तेबे आलोचना को जीवा पूर्व आम दूरदर्शन प्रस्तुत एक सुंदर ऑडियो विजुअल को आसंतु देखि नेबा आमर ए स्वतंत्र प्रस्तुति। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सश्यामला मातरम वंदे मातरम सुब्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कण्ठा कलकलनिनादकराले कोटि कोटि भुजैर्धृत करकरवाले अवलाकेनुमायितु बले बहुबलधारिणी नमामि तारिणि त्रिपुरवारिणि मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्मा त्वामि प्राण शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। स्वामी दुर्गा रसप्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणीर्विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला मधुला सुजला सुफला मातरं वन्दे मातरम्। श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता धरणी वरणी मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। दर्शक बंधु आज ए संपूर्ण विषय आलोचना करने आम सहित जे विशेषज्ञ भाव में उपस्थापित होती भारतीय जनता पार्टी राज्य प्रवक्ता श्रीजुक्त सरोज सामल महोदय। सर स्वागत करुच्छे आपको। नमस्कार सर आपंठ विशेष भाव में जानापी चाहिए ये जो वंदे मातरम संगीत यार संरचनार पृष्ठभूमि कौन रही? देखंतु समय थिला 19 शताब्दीर शेष भाग सेतबळे ग्रेट बेंगल फैमिन दुर्भिक्ष होता से दुर्भिक्षर समय थिला 1776 मसीहा तार एक शताब्दी परे अर्थात 1800
76 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଏ କବିତା ଲେଖିଲେ କିଏ ନା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚେତନାର ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟତାବାଦର ଚେତନାକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା କବିତା ସେ ଲେଖିଲେ। ସେଥିରେ ସେଟା କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1882 ମସିହାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର କାଲକାଟାରେ ସେସନ୍ ହେଲା 1896 ମସିହାରେ ସେ ସେସନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଆବୃତ୍ତି କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଯିଏ ଲେଖକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ସେ କାଲକାଟାର INC ସେସନ୍ ଯାହାକୁ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ରହିମତୁଲ୍ଲା ମହମ୍ମଦ ସାୟାନୀ 1896 ମସିହାରେ ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ କବିତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାନ କରିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ସାର୍ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଲେଖନୀ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏ ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ କେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେ ପ୍ରତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କୌଣସି ନଜର ରଖୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ପଲିସିର ନେଗେଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦ ମଠ କବିତାରେ ଏଇ କଥା ଆନନ୍ଦ ମଠ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଲେଖା ହେଲା। ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ସେମାନେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଜାତୀୟତାବାଦ ଚେତନାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କହିବି କାରଣ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ବୋଲା ହେଇଛି 1896 ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହେଇଛି। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପରେ ପରେ ଭାରତବର୍ଷର ଜାତୀୟତାବାଦର ରାଜନୀତିକୁ ଯଦି କେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚରମପନ୍ଥୀ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ସେଇ ଚରମପନ୍ଥୀ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ଯାହା ଭିତରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟା ଜାତୀୟତାବାଦର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ମହାନ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟତାବାଦର ମନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗାନ କଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ବିସ୍ତାରୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ ଭାରତବର୍ଷର ଜନମାନସରେ ଏହି କବିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପପୁଲାର ହୋଇଗଲା। ସାର୍ ଆପଣ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହେଉ ବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ସବୁକୁ ବଳ ଦେଇଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତ। ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଦେଶମାତୃକା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଚେତନାର ଗୋଟେ ବହ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲା ଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆପଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଂଶୁମାନ ବାବୁ, ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ଏବଂ ସେ କବିତା ହିଁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତାକୁ। ସେ କବିତା ହେଉଛି ଜବ ତକ गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वतंत्र सामर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अर्थात भारतवर्षरे एवं समग्र पृथ्वी पृष्ठरे जो दिन पर्यंत कौन गंगा नदी प्रवाहित होथिबे, जेते दिन पर्यंत समुद्र रे जुआर आसुथिबो, जेते दिन पर्यंत सूर्यरु उत्तप्त रश्मि आसुथिबो एवं चंद्ररु शीतर किरण आसुथिबो, सेते दिन पर्यंत जो देश रे पराधीनता थिबो से पराधीनता को कौन करिया पई हटेया पई जाइकी एवं देश रे स्वाधीनतार चेतना आनिया पई संग्रामी माने निश्चित भावे जातीयतावाद रूपी कविता एवं मंत्र रे निजको उद्बोधित करुथिबे। आउ समय थिला 19 शताब्दीर शेष भाग, 20 शताब्दीर आरंभ होबा पई जाउछि। से समय ऑब्वियसली तो आम देश रे ब्रिटिशर्स माने शासन करुथिले। तेणु से समयर सामाजिक परिस्थिति जहाँ थिला, राजनैतिक परिस्थिति जहाँ थिला, अर्थनैतिक परिस्थिति जहाँ थिला एवं सामग्रिक सामूहिक परिस्थिति जहाँ थिला, सेतबळे
कौन जो माने निजको देश प्रेम उद्बुद्ध करते देश स्वाधीनतार बन्ही निजको निर्वापित करने जाऊे ये कविताटी तांकु प्रेरणा रूपे अनेक प्रेरणा जोगेछि एवं देश प्रेम एवं देश को स्वाधीनता करिबारे बहु बाट आगे नबारे साहाय्य करिछि। आपणक कथा शुणिला बेले मन पड़ूला भारतर स्वाधीनता संग्राम इतिहास ये वंदे मातरम को लेकिन विशेष भाव में गरिमामंडित होइछि। केतेबेले भारतर स्वाधीनता संग्रामी माने वंदे मातरम स्लोगान दे कारागार हसी हसी बरण करिसेंती तो पुणी केतेबेले अनेक स्वाधीनता संग्रामी जीवन शेष उक्ति होइछि वंदे मातरम। तेबे वंदे मातरम कहले गोटे साधारण लोक कौन बुझिबो कौन रही वंदे मातरम अर्थ? देखंतु जदि आमे तार आक्षरिक अर्थ अनुवाद करिबा आक्षरिक अर्थ रे हबो माता होचंती वंदनीय माता को पूजा करने उचित। बंकिम चंद्र एठारे माता क्या कहते भारत भूमि को माता बोलिकी कहते एवं बंकिम चंद्र कहते भारत मातांकर तीन प्रकार गणेशकर मैनिफेस्टेशन होचंती भारत माता भितर से शक्तिर प्रतीक माँ दुर्गा को देखिछंती। भारत माता भितर से प्राचुर्यर प्रतीक क्या देखिछंती ना लक्ष्मी की देखिछंती एवं भारत माता भितर से ज्ञान विद्यार प्रतीक हिसाब रे माँ सरस्वती की देखिछंती। ताहा सहित प्राचीन भारत केमिति समृद्ध थिला किंतु ब्रिटिश पीरियड रे जेतबळे ब्रिटिशर्स मानकर शासन चली केमिति भारत मातार अर्थ सबु पड़ी जाउथला ब्रिटेन को ड्रेन हो जाउथला हमर वेल्थ ताकू भी से कंपेरेटिव एनालिसिस से कवितारे करचंती। कारण समय थिला भारत कौन थिला आमे कहती भारत सुनार चढ़ई थिला सुना अंडा दौथिया चढ़ईटे भारत माता थिला किंतु ब्रिटिश पीरियड रे कौन हैला ए देश को गरीबी आसिला कारण सबू अर्थ को जेते प्रकार नेचुरल रिसोर्सेस अच्छी ब्रिटिशर्स माने लूट करिनेले तेणु ब्रिटेन जेतबळे समृद्धि घटुला भारतर सेतबळे कौन होतला गरीबी घटुला। यही परिप्रेक्षी रे मोर मने पड़ुछि आउ एक कविता जे बंकिम चंद्र से कविता ही बंकिम चंद्रंकर भावना को जस्टिफाई करि परिबो भारत माता को लेकिन से कविता होछि एही फळी सस्य श्यामला स्वर्ण भूमि क्यों हुई आज कंगाल किसके कारण देव भूमि में आज अभाव काल जग जननी ने भीख मांगने का दुर्दिन क्यों देखा पुत्रों के पापों का फल है यह ना नियति का लेखा। सूर्य गिर गया अंधकार में ठोकर खाकर भीख मांगता है कुबेर झोली फैलाकर। जे बंकिम चंद्र चटर्जी भारतर गरिमामय इतिहास गौरवोज्ज्वल अतीत को एवं अतीतर समृद्धि को लेकिन लिखुचंती जे दिने ये देश प्राचुर्य भरपूर होता वर्तमान से केमिति ये देश को गरीबी आसिला जो देश रे कर्णक भली महान दानी माने थिले से देश रे आज केमिति समस्ते हो जाइछंती कौन 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 के मोहताज जे समस्ते केमिति एमिति जे भिक्षा केमिति मागुचंती। तेणु ब्रिटिश पीरियड रे जहाँ आम देशर अर्थनैतिक बैकवर्डनेस आसी अनग्रसरता आसी ताकू से कंपेयर करके कहते जे ए देश रे दिने ए देश थिला कार ना धनर देवता कुबेरकर देश थिला। तेणु जोठी कुबेर संपूर्ण जे होचंती प्राचुर्यर देवता सी आज कौन करचंती ब्रिटिश पीरियड रे कौन ना कांधे भिक्षा थाल पकईकी भिक्षा मागुचंती। तेणु धनर देवता कुबेर वर्तमान परिस्थिति रे भिक्षा मागुचंती। आर अर्थ होची भारत वर्षर अर्थनैतिक अनग्रसरता पाई ब्रिटिशर्स माने संपूर्ण भावे दायी एटा को ही से जस्टिफाई करुचंती ए कवितार अन्य स्टांजा गुड़िक। इतिहास पृष्ठा कहे दुर्दशा ब्रिटिश बाहिनी बंधुक आगे केबे भी थकी नथिला केबे भी नई नथिला ए भारतीय मुंड। तेबे भारतीय मानक भितर राष्ट्रवादी चिंता और चेतनार जो स्फुलिंग से दिन जाग्रत करथिला ए वंदे मातरम ताकू आपण किभଳି देखुचंती जे वंदे मातरम गीत और स्लोगान किभଳି भारतीय मानक राष्ट्र हित पाई जीवन को समर्पित करिया पाई देइथिला गोटे आदर्शवाद और अनुप्राणित करथिला से मानक। देखंतु राष्ट्रीयतावाद होची एक चेतना एवं राष्ट्रीयतावाद होची एक बन्ही जेतबळे राष्ट्र पराधीनतार श्रृंखले थाए सेतबळे जदि कोनोसी राष्ट्रीयतावादी कवि ये भली कविता लिखती बंकिम चंद्र चटर्जी जे भली लिखिछंती निश्चित भावे यह
स्वाधीनता संग्राम रे योगदान करिथिबा युवक मानकु प्रेरणा जोगेइब एवं सेही कथा घटिछि 20th सेंचुरी बिगिनिंग रे विंश शताब्दी आरंभ रे आमे सेही कथा देखुचंती। कारण देखंतु 1896 मसीहा अर्थात ऊनविंश शताब्दी सरी सरी आसुछि तापर कौन होची विंश शताब्दी आरंभ हम तेणु ऊनविंश शताब्दीर शेष आड़कू यही कविताटी को बोलाहला इंडियन नेशनल कांग्रेस रो कलकाता सेशन जहाँ को रहीमतुल्ला सायानी प्रिजाइड करथिले। तार किछि वर्ष परे अर्थात 1905 मसीह बेंगल पार्टीशन हैला। लॉर्ड कर्जन ताकू पार्टीशन कले भाग भाग कले। ता पछरे उद्देश्य थिला देश रे सांप्रदायिक दंगा सृष्टि करिबा, हिंदू मानकु मुसलमान कठारु अलगा करी रखिबा एवं कौन इंटीग्रेशन टाकू अर्थात जातीय संहति को पराहत करिबा एई उद्देश्य रखी कि करा हला पार्टीशन। एवं तापरे कौन हला जेतळे 1905 मसीह रे बेंगल पार्टीशन हला सेतबळे कि हिंदू कि मुसलमान समस्ते एक हेई गले। समस्ते कहिले वंदे मातरम माता वंदनिया एवं गंगा नदी रे बुड़ पकेइले। शपथ ग्रहण कले जो दिन पर्यंत बेंगल पार्टीशन बंग विभाजन समाप्त न होईची अर्थात ब्रिटिश सरकार तांको घोषणा को प्रत्याहार करी नाहंती से दिन पर्यंत वंदे मातरम माध्यम रे बेंगल पार्टीशन विरुद्ध रे आमर संग्राम जारी रहिबो। एवं से संग्राम कंटिन्यू कला। लास्ट को कौन है ब्रिटिश सरकार बाध्य हेले तांको निष्पत्ति को प्रत्याहार करिया पाई। समय होची 1911 मसीहा बाध्य हेले ब्रिटिश सरकार बेंगल पार्टीशन को आनल करिया पाई प्रत्याहार करिया पाई। तेणु पुणी कौन है जेतବେଳେ 1911 मसीह बंग विभाजन को प्रत्याहार करिनेले ब्रिटिश सरकार सेतबळे पुणी थरे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो बसिला सेशन सही कलकत्ता रे बसिला एवं से सेशन को जे प्रिजाइड कले तांको ना होची बिशन नारायण धर एवं सेही सेशन रे रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जातीय संगीत जनगण मन को सेठे गायन कराहला। एथरो आमको प्रमाणित मिले इतिहास आमको कहे जे गोटाए देश रे जातीयतावादर बन्ही बलिले जेतବେଳେ बन्ही जले जेतବେଳେ युवक माने तातंती युवक माने मातंती सेतବେଳେ विदेशी शासन मानकर विदेशी शासक मानकर मोराल करेज कमी जाए एवं सेमाने बाध्य होइकि निष्पत्ति को प्रत्याहार करि नियंती। तेणु 1896 रु आरंभ करी 1911 मसीहा पर्यंत दुईटा कविता गोटे होची नेशनल एंथेम जनगण मन आउ गोटे होची नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। आमे ओडिया रे ताकू कहउचंती जातीय संगीत नेशनल एंथेम बा जातीय गीत जोटा को आमे कहउचंती वंदे मातरम जोटा बट नेशनल सॉन्ग। तेणु दुईटा नेशनल सॉन्ग भितरे एंथेम हो बा सॉन्ग हो ता भितरे ब्रिटिश सरकार निजर निष्पत्ति को प्रत्याहार करिया पाई बाध्य होइथिले। यहाँ ही प्रमाणित करे नेशनल सॉन्ग बा नेशनल एंथेम रो भूमिका कौन गोटे राष्ट्रर सबु वर्गर लोक मान को एकत्रित करिया पाई आ विदेशी शासन विरुद्ध रे निजर स्वर को तीक्ष्ण करिया पाई शाणित करिया पाई। आपण जातीय संगीत और राष्ट्रीय गीत कथा कहते तो साधारण लोक गोटे संशयर विषय हुए राष्ट्रीय संगीत और जातीय गीत भितर कौन किसी विभेद रही कि? अंशुमान बाबू बहुत भल प्रश्न आपन पचारचंती। इनफैक्ट देखंतु एक्चुअली बहुत गुड़े देश में जातीय नेशनल एंथेम और नेशनल सॉन्ग ए डिफरेंस नहीं किसी देश में अच्छी किसी देश में नहीं। तेणु नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथेम भितर जदि आमे क्लियर कट डिमार्केशन देखिबा प्रथम कथा होची नेशनल एंथेमटा होची गोटे फॉर्मल सॉन्ग जोटा को जेतबले स्टेट विभिन्न जगह निजको रिप्रेजेंट करुची ऑफिशियली सेठी नेशनल एंथेम बोला जाए। अर्थात स्वाधीनता दिवस हो बा आमर जो देखुंती कौन गणतंत्र दिवस हो बा स्वाधीनता दिवस हो सेठी आमे गायन करुचंती कौन आमे करुचंती जनगण मन कारण एटा होची आमर नेशनल एंथेम अर्थात जातीय संगीत। किंतु जातीय संगीतर जहाँ भूमिका अच्छी देश भितर जातीयतावाद को उद्रेक करिया पाई युवा समाज रे युवा मानस रे देश प्रेम रो बन्ही को उद्रेक करिया पाई सेम भूमिका समान भूमिका अच्छी कहार ना नेशनल सॉन्ग रो जातीय राष्ट्रीय गीतर। किंतु राष्ट्रीय गीतटा होची इनफॉर्मल एस्पेक्ट एटा को कोनोसी गोटे जगार बोला जाई परिबो स्टेट जोठी रिप्रेजेंट करुची सेठी बोला जाई परिबो जोठी रिप्रेजेंट न करुची फॉर एग्जांपल आमे गोटे फंक्शन करूचंती
सेठी बहुत बड़ बड़ डिग्निटारीज को आम निमंत्रित करठी भी आम नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बोली परिबा। तेणु डिमार्केशन या हूँ दुईटी भितर प्रभेद या हूँ नेशनल सॉन्ग है गोटे फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ द नेशन नेशनल आंथेम हूँ फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ नेशन एवं नेशनल सॉन्ग हूँ इनफॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ द नेशन किंतु दुईटी जाक कविता रो प्राधान्य रही देशवासी भितर जातीयतावाद एवं देश प्रेम को उद्रेक करने राष्ट्रीय चिंता और चेतना राष्ट्रीयवाद चिंता और चेतनार गोटे स्पष्ट चित्र भाव में केतेबेले वंदे मातरम गोटे गीत ही पलटि आम समस्तंकर मुक्तिर गोटे मूर्छना तो पुणी केतेबेले यह एक स्लोगान पलटि पुणी आम देखीचु 1907 मसीह आमर जातीय पताकार वंदे मातरम लेखा होईछि तो कौन रही तार पृष्ठभूमि जो जातीय पताकार वंदे मातरम लेखा हुआ आर पृष्ठभूमि कौन रही देखंतु प्रथम कथा हूँ कहली जे जातीय पताकार आम जातीय पताकाटा को आम धरी पारिबा कौन फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ नेशनल लाइफ से दृष्टि देखापी गले जातीय पताकार जो फॉर्मल एस्पेक्ट को आम देखा ताले निश्चित सेठी रहिवा कथा जनगण मन किंतु जेतेबेले नेशनल सॉन्ग रहुची वंदे मातरम तार अर्थ होची जेतेबेले देश भितर जातीयतावाद एवं देश प्रेम देश प्रीति शीर्ष स्थान रे पहुँचुची युवक माने निजर उद्दामता को जेतेबेले कंट्रोल करि पारु नाहंती तार रिफ्लेक्शन होची जातीय पताकार रहुची वंदे मातरम आर अर्थ होची आमे आमर फॉर्मल लाइफ और इनफॉर्मल लाइफ भितर क्लियर कट किसी डिस्टिंक्शन आमे करि पारिबुनु कारण जातीयतावाद तो मो कोर्ट भलिया नुहे जेतेबेले मु चाहिबी कोर्टटा को खोली देई पारिबी देश प्रेमटा सेमतिया नुहे देश प्रेम मनीषर धमनी रे बहुची मनीषर शिरा प्रशिरा प्रवाहित होची तेणु केतेबेले सी नेशनल सॉन्ग भीतर देके आसीजिवो ताहा भी कही हबो नाही कारण शार्ट पैंट को आमर इच्छा अनुजाई आम बदल पारिबा किंतु देश प्रेम देश प्रीति को आमर इच्छा अनुजाई आम कंट्रोल करि परिबा नाही जेहेतु मु कहूची 1905 मसीह बंग विभाजन होईची जातीयतावाद शीर्ष स्थान रे पहुँची सारा भारतीय माने गोटे स्लोगान दौरान बंग भंग को प्रत्याहार करनियो से ठीक सेतिक बेले देशर प्राण रे जो तीव्र जातीयतावादर उद्वेलन देखा जाउची ताहार प्रतिफलन देखा जाउची जातीय पताकारे वंदे मातरम लिखिबा द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम को क्यों जोगजन्मा मनीषी माने परवर्ती समय प्रतिटी भारतीय पाखे पहुँचापी गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं देखंतु स्वाधीनतार पृष्ठभूमि रे स्वाधीनता संग्राम पृष्ठभूमि रे 1885 मसीह जेतेबेले इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हैला 1885 रु आरंभ करिकी 1905 दीर्घ 20 वर्ष कौन होता ना कांग्रेस को डोमिनेट करके रखी कौ माने ना मॉडरेट कहले ओडिया रे आमे कहउचंती नरमपंथी तेणु नरमपंथींकर अप्रोच थिला ब्रिटिशर्स मानक प्रति प्रेयर और पिटिशन अप्रोच नरमपंथी माने चाहूथिले राजनीति केवल इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी माने करिबा उचित राजनीति रे मध्यम वर्गर मिडिल क्लास रो कोनोसी भूमिका नाही किंतु जेतबे बंग विभाजन हैला लाला लजपत राय बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्र पाल एवं ता सहित अरविंद घोष जो मानकर राजनीति को लेकिन आभिमुख्य संपूर्ण भिन्न थिला चरम नरमपंथी ठारू से मानक चरमपंथी से ये 4 जन को चरमपंथी नेता बोली कि कहुची ये चरमपंथी नेता माने निर्धारण कले जे ना राजनीति खाली बुद्धिजीवी मानकर प्रोफेशन होइकि रहिबो से कथा नुहे राजनीति रे मध्यम वर्गर लोक माने अंशग्रहण करिया उचित सेथिपाई से माने कौन कले जे जो माने स्कूल कॉलेज रु पाठ पढ़िके आसुथिले बा पढ़ुथिले सेमानक भितरे ए वंदे मातरम मंत्र प्रवेश कराया पे चेष्टा कले जहा फल रे जातीयतावाद कौन करिबो बा देश प्रेम रो गोटे रिपिलिंग इफेक्ट रहिबो रिपिलिंग इफेक्ट कहले गोटे पोखरी भितर को टेकाटिए पकई देले जो तरंगायित होइकी पलिया से कूल पर्यंत जेतेबेले जातीयतावाद को नरमपंथी नेता माने केवल पोखरीर मध्य भाग स्थिरीकृत करी रखिथिले संकुचित करी रखिथिले वर्तमान जेतेबेले एक्सट्रीमिस्ट लीडर माने आसिले चरमपंथी माने आसिले से माने कहिले नाई ए देश प्रेमर बर्णी समग्र देश भीतर को प्रवेश करू तेणु से दृष्टि देखिया गले वंदे मातरम को
जनमानसरे अति परिचित करिथिबा जननायक माने होचंती आमर चिर पूजनीय चिर वंदनीय लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष। वंदे मातरम जो जातीयतावादर जो मशाल प्रतिटी भारतीय हृदय जाली ता परवर्ती समय गोटे विशाल बन्नी परिणत होता और से बन्नी को प्रशमित करने ब्रिटिश सरकार किछि कटकणा तापर जारी करथिले। से वंदे मातरम गीत गान हो, स्लोगान गान हो अथवा जो आनंद मठ पुस्तक थिला ताकु मध्य बैन करथिले। ए बैनटी केबे और काहेकि हितला और परवर्ती समय रे ए बैनटी केतेबेले उठिथिला? देखंतु प्रथम कथा होची बहिटी मु देखै दउची वंदे मातरम कविता एथरे प्रथम थर पर लेखा होता जदिओ यहाँ बंगलार यहाँ लेखा होता जेहेतु मोर बंगला पढ़ार दक्षता नहीं तेणु ओडिया लेखा होता बहीटी को मुझे हाथ धरिकी आज आसी यही बहीटी प्रथम थर पर ए बहीर पब्लिकेशन है 1882 मसीह तेणु 1882 मसीह प्रथम थर पर वंदे मातरम यही बही स्थानित है। वंदे मातरम कविताटी बहुत दीर्घ कविता किंतु ताहार एथरे ओरिजिनल कविताटा दीर्घ कविताटी अच्छी किंतु आमर जो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताथुर रखिला प्रथम 2 स्टांजा को रखिला तेणु संपूर्ण कविताटी यही बही अच्छी। तापर कौन है मुझे कही जितेबाला कांग्रेस सेसन चलता कलकाता 1896 मसीह से यहाँ प्रथम थर पर गान है जिते गान है तापर कौन है 1905 मसीह ऑब्वियसली सेतबले समग्र देश में जातीयतार बन्ही चली एवं जातीयता संग्राम जातीयतावाद संग्राम रे सबुठु आगरे अच्छी पंजाब राज्य एवं बेंगल राज्य तेणु जितेबाला देखिले बहु नेशनल लीडर माने बेंगल एकत्रित होती तेणु नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को गति को मंदित करने डिसिलियरेट करने बर्तमान से कौन कले बेंगल पार्टीशन टी घोषणा करदे बंग विभाजन कथा पॉलिसी करदे जो बंग विभाजन पॉलिसी करदे आपन निजे भी कहूले मु भी आपन संगे डिस्कसन करूली से लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एमानकर पॉपुलारिटी बढ़ीगलानी एमाने यही मंत्र द्वारा दीक्षित होचंती एवं भारतीय साधारण जनतार मन भितर वंदे मातरम चेतना को उद्रेक करुछंती। से समय ब्रिटिशर्स माने देखिले ये मंत्र ये कविता जदि सबु जगह पढ़ाहब भारतीय माने स्वाधीनता संग्राम रे झास देबे एवं ब्रिटिशर्स माने देशरु विताड़ित हेबे। तेणु जो जातीयतावादर बन्ही तीव्र बेगरे गति करुथला प्रत्येक भारतीय मानसरे प्रत्येक भारतीय हृदय रे ताकू मंदित करने डिसिलरेट करने तार बेग को कमे दबापाई बर्तमान कौन कले ताकू डिक्लेयर करदे जे कविता होची बैन हो गला बोलिकी आर मुख्य उद्देश्य थिला जे भारतीय माने केमिति स्वाधीनता संग्राम रे छारू निजको दूरेई रखंतु। एटा बहुत नेचुरल कारण सेमानकर जेहेतु एठी से रहुथिले शासन करुथिले एवं पावर विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी कारण सबु प्रकार क्षमतार अधिकारी थिले उत्तर दायित्व तांकर नथिला तांक स्वार्थरे आंच आसिला एवं तांक स्वार्थरे आंच आनिया पई जो कविताटी प्रमुख स्थान ग्रहण करिथिला ताकू से बैन करवाटा जस्टिफाइड थिला से समय से कले बेंगल पार्टीशन समय। आज जितेबाला भारत यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आह्वान रे राष्ट्रवादी चिंता और चेतना रे गोटे सुंदर चित्र आम देखा मिलूँ से समय ये जो वंदे मातरम संगीत सांप्रतिक युवगोष्ठी को ये जो राष्ट्रवादी चिंता और चेतना किभली भाव में उद्विग्न कर देखंतु आज समग्र भारत पृथ्वी रे भारत वर्षर चित्र चरित्र और चेहरा रे व्यापक परिवर्तन घटुची। आपण जदि अर्थनैतिक दृष्टिकोण देखिए समग्र पृथ्वी रे थिबा बहु देश गुड़िक भितर वर्तमान भारत वर्ष है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जे 5म लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत वर्ष ता संगे कौन होची जदि आपण रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रे देखिए सारा पृथ्वी रे जेते देश अच्छी पाखापाखि 200 देश अच्छी 200 देश भितर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जदि कौनसी गोटे देश रे सबुठारु अधिक बेगरे अर्थनीति बढ़ु थाए सेटा होची भारत वर्ष। तेणु इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी वी आर द नंबर 1। तेणु निश्चित भारत वर्ष गोटे भारत वर्ष लगी गोटे शुभ लक्षण देखा होची। भारत वर्ष आगे चली अर्थनीति रे खाली अर्थनीति रे आगे चलची से कथा नुहे आपण देखंतु सॉफ्ट पावर रे भी भारत केते आगे गलानी। दिने समय थिला भारत वर्षर प्रधानमंत्री भाबुथिले जदि मते अमेरिकार राष्ट्रपति गोटे फोन कर दियंती मोर जीवन धन्य हो किंतु आज से समय नाही
ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ को ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରମ୍ବାର ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହିଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଜି ଭାରତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳନା କରିବେ। आज आलोचना चक्र को सफल कर आपको अनेक अनेक धन्यवाद जनावु। दर्शक बंधु भारतर ये विजय वैजयंती आगुसार हो आम समस्त भितर भारत पर से ममत्वबोध रो और देश प्रेमर से जो अमंद मंदाकिनी आम समस्त भितर प्रवाहित हो आ सदर्पे आम समस्ते भारतीय गोटे कथा कहूथिबा वंदे मातरम।